Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know that yesterday I have explained you nouns gender. Okay, yesterday we have seen about the four types of gender: masculine gender, feminine gender, and common gender and neuter gender. And one thing I will tell you, Jannat, your way of giving answer is not correct. If you want to give answer, then give answer one by one. Okay, suppose you are going to write answer 1, then answer 2, answer 3 and answer 4. Don't write answer 1 and after others answer you will write answer 2, and then after others answer you will write answer 3. So if you want to give answer, then write in a sequence 1 2 3 4. Okay, डू यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मेरा मतलब है अगर आपको आंसर देने हैं तो आप जैसे आंसर 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, वो एक साथ दीजिए. आप क्या करते हो, किसी का एक आपने जैसे आंसर दिया और उसके बाद किसी और का आ जाता है, अदर का, फिर आपका दूसरा आंसर होता है, तो ऐसे नहीं दिया जाता है. आप एक साथ दीजिए तो वो मैं सही से देख पाती हूँ कि आपने क्या आंसर दिया है. ओके, और कॉमा वगैरह देख लिया करिए, क्योंकि फिर वो क्लियर ही नहीं होता है कि आपने लिखा क्या है. दैट इज़ क्लियर. Okay, now move forward to our topic. As you all know that genders have four types: masculine, feminine, common and neuter. So yesterday I have explained till here. So let us move forward and accept it. I have also explained you this from my notebook, as you all know. Now we will move forward to our next. Okay, so our next portion. Now I will explain you one by one what is masculine gender, what is feminine gender, what is common gender and what is neuter gender. So first we take masculine gender. So the names of all male persons or animals come under this gender. That means जो मेल पर्सन्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? दे ऑल कम इन मेल, दे ऑल कम इन मैस्कुलिन जेंडर. सो व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल्स आर नोन एज मैस्कुलिन जेंडर. कोई मेल पर्सन हो या मेल एनिमल होगा वो किस में आएगा? मेल एनिमल क्या होते हैं? जैसे लॉयन है वो मेल एनिमल है, लॉयनेस हो जाएगी फीमेल. ठीक है, ऐसे ही इन हिंदी शेर शेरनी, ठीक है, मोर मोरनी, ठीक है, गधा गधी, ठीक है, इस तरह से होता है. हाँ, तो जैसे कि और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो हिरन हिरनी, ठीक है, और बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी. तो इस तरह से फीमेल और मेल में डिफरेंस होता है. सो द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन और एनिमल कम अंडर दिस जेंडर. दैट मीन्स जितने भी मेल पर्सन्स हो या एनिमल्स हो वो कहाँ आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में आता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मैन, अंकल, वेटर, किंग, फॉक्स. ओके, these are male gender, so it is masculine gender. Let us move to the next, feminine gender. Feminine gender, the name of all female persons on animals come under this gender. That means जो female genders होते हैं, whatever they are person or they are animals, are come in the feminine gender, like woman, aunt, waitress, queen, vixen. ये सारे किस में आते हैं? These are feminine gender. So the name of all female persons or animal come under this gender, like वुमेन, आंट, वेट्रेस, क्वीन, विक्सन. ओके, दीज आर द मेल जेंडर ऑफ दिस. मैन का वुमेन, अंकल, आंट, वेटर, वेट्रेस, किंग, क्वीन, फॉक्स, विक्सन. मैं ये आपको शो करने के लिए बता रही हूँ, आपको ये एरो नहीं करना है. सो फेमिनिन जेंडर. ओके, द नेम ऑफ ऑल फीमेल्स persons or animal are known as feminine gender, and feminine gender are woman, aunt, waitress, queen, vixen, etc. Clear? Now come to the common gender. What is common gender? There are certain names that can be used for the both male and female nouns. Yesterday I have explained. Suppose I will tell you that yesterday I met a politician who told me about his life history. So now tell me, the politician was male or female? मैं कल एक पॉलिटिशियन से मिली और उन्होंने मुझे अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया. अब आप बताइए वो मेल पॉलिटिशियन थे या फीमेल पॉलिटिशियन में, है ना? तो now you are unable to identify to whom I am talking about. I am talking about the male or female. So when there is some confusion to determine the person is male or female, then we write
it in as a कॉमन जेंडर। तो जहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो, क्लियर ना हो कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, तो क्या होता है वहाँ पर कॉमन जेंडर होता है। नाउ कॉमन जेंडर इज क्लियर, यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली। सो देयर आर, आप खुद ही देख लीजिएगा, सेंटेंस यूज़ करके आप देख सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो दोनों में यूज़ हो जाए दैट आर नोन एज द कॉमन जेंडर। उन्हें हम एज अ फीमेल भी ले सकते हैं, एज अ मेल भी ले सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन नेम्स दैट कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। सच नेम्स कम अंडर कॉमन जेंडर लाइक डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, ऑफिसर। डॉक्टर भी दोनों ही होते हैं, मेल भी होती है, फीमेल भी होती है। टीचर भी दोनों होते हैं, पेरेंट मम्मा पापा दोनों होते हैं। सो मदर आपकी फ़ीमेल हो गई और फादर आपके मेल हो गए। स्टूडेंट भी गर्ल बॉय दोनों होते हैं, ऑफिसर भी आपके मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। सो दीज ऑल आर द कॉमन जेंडर एंड दीज आर नॉट एनफ, देयर आर सो मैनी मोर कॉमन जेंडर, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, लेट अस सी द न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स can't be distinguished as either male और फीमेल। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। सो द नेम ऑफ सच थिंग्स कम अंडर न्यूटर जेंडर। तो ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे हैव नो लाइफ, जिनकी लाइफ नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती है, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनमें जान ना हो, ठीक है, वो जान किन में नहीं होती, जिनको काटो तो उससे ब्लड नहीं आता, दैट आर नोन एज न्यूटर। ओके, हमारी बुक है, उसको आप काट के अलग कर दीजिए, फिंगर काट के देखिए क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, नाक काट के देखिए ब्लड आएगा, बट आप बुक को काटेंगे, बॉक्स को काट देंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें जान नहीं होती है दैट आर नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज द न्यूटर जेंडर। सो वेयर वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश्ड आइदर और मेल और फीमेल, और उनमें हम नहीं बता पाते कि मेल है कि फीमेल, तो वो हमारा न्यूटर जेंडर होता है। सो नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज द न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ट्री, टेबल, बुक, पेन, बोर्ड। ओके, दिस ऑल आर न्यूटर जेंडर। इधर इससे और भी होते हैं। सो देयर आर मोर देन वन वे टू फॉर्म फेमिनिन नेम फ्रॉम मैस्कुलिन नेम। अब एक ये वे होता है, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो डायरेक्टली मैंने मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज किया था। अब EESS ऐड करके बहुत सारे मैस्कुलिन फेमिनिन में बनते हैं। सो आपको ऐसे करके इसको एडिंग में डालना है। देयर आर मोर देन वन वे टू फॉर्म फेमिनिन नेम्स फ्रॉम मैस्कुलिन नेम्स लाइक by adding ESS. Okay, so first masculine and then feminine. Host, hostess, loin, loiness, steward, stewardess, prince, princess. These all masculine and feminine gender. Okay, that is clear to all of you. So now let us see. We will see firstly this one. Let us see books. As you all know that till here I have explained you about the 4 genders. Now लेकिन usually आपसे कोई पूछा how many type of gender, you always will speak that there are 4 types of gender. Okay, so next फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। अब फेमिनिन से मैस्कुलिन कैसे हम बनाते हैं? सो अभी मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, बाय एडिंग ESS वी मेक फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में आप ESS लगा नहीं देखेंगे, मोस्टली आप फेमिनिन में ही देखेंगे। सो सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय एडिंग द सफिक्सेस। ओके, समटाइम्स विद अ स्लाइट चेंज। ओके, like you can see here poet, poet का poetess, hair का hairess. ओके, ये देखिए ESS से we make this by adding the ESS, loin, loiness, prince, princess, actor, actress, hero, heroine, INE से ये बना है, लेकिन emperor, empress एक ही इसमें एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब ESS वाले ही हैं, सिर्फ एक ये INE से जो बना है। ठीक है, और शेफर्ड, शेफर्डेस, बट यू हैव टू लर्न दैट। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो ये लर्न करके रखिएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी आफ्टर एज यू एंड अप वॉचिंग द वीडियो, एंड टुमारो आई विल आस्क दीज। तो आपको जो अभी मैंने ये ESS वाले बताए हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं। टुमारो आई विल आस्क ABC से ही मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। ओके, सो नंबर B, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैस्कुलिन बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रीफिक्स या सफिक्स
कुछ जगह प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो जैसे ये वर्ड है, ठीक है, इसमें 2 वर्ड है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहला वाला होता है, सफिक्स जो होता है वो बाद वाला होता है। प्रीफिक्स मीन्स टू ऐड समथिंग इन प्रीवियस, सफिक्स मीन्स टू ऐड समथिंग इन लास्ट। जब हम किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग में कुछ ऐड करते हैं वो प्रीफिक्स होता है, और जो लास्ट में ऐड करते हैं दैट इज नोन एज द सफिक्स। तो कुछ जो फेमिनिन होते हैं हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके बनाते हैं। सपोज कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो का क्या हो जाएगा, कॉक को आप चेंज कर रहे हैं हैन में। जो कॉक होता है, कॉक स्पैरो जो होता है वो क्या है, मैस्कुलिन है। कॉक का क्या हो जाता है, हैन, तो हम किसको चेंज कर लेंगे, हैन को। दैट मीन्स हम कहाँ चेंजेस कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग इन सॉरी, वी आर चेंजिंग इन प्रीफिक्स। तो कॉक का क्या हो जाएगा, हैन स्पैरो। ही गोट, शी गोट, वी आर चेंजिंग इन प्रीफिक्स। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, है ना। अब इसको प्लूरल नहीं बनाना है कि मैन का मेन कर दिया, मैन का मेड हो जाएगा। जो नौकर होता है वो मैन सर्वेंट होता है, और जो नौकरानी होती है उसको हम मेड कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए, मेरे यहाँ मेड आती है, वो काम करती है, मेरे यहाँ वहाँ से मेड आती है। तो मेड मीन्स नौकरानी होता है। सो यहाँ पे जैसे कि मैन सर्वेंट है तो ये हो गया मेड सर्वेंट, ठीक है, नौकरानी को मेड कहते हैं। फिर ग्रैंडफादर, नाउ वी आर चेंजिंग इन, अभी तक हम किस में चेंज कर रहे थे, वी हैव changed in the prefix, now we will change in the suffix. Grandfather, grandmother, landlord, landlady, milkman, milkmaid, ठीक है। दूध वाला मिल्कमैन होता है, मिल्कमेड दूध वाली, ठीक है, दूध बेचने वाली जो होती है। फिर बिली गोट का नैनी गोट, ओके। अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्स में चेंज किया, बिली गोट का नैनी गोट। देन बुल एलिफेंट का काऊ एलिफेंट, बुल एलिफेंट का काऊ एलिफेंट। यू हैव टू लर्न, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपको लर्न ही करने हैं। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, मैनी नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एज, ओके। अब ये होते हैं, ये पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। सपोज बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ, और यू कैन से दिस आर द अपोजिट। अपोजिट भी इन्हीं को बोलते हैं और फेमिनिन भी यही होते हैं। अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ठीक है। बुल, काऊ, डॉग, बिच, किंग, क्वीन, जेंटलमैन, लेडी। जेंटलमैन का जेंटल लेडी नहीं होता, खाली लेडी होता है। आपने कभी भी किसी की स्पीच सुनी होगी, लोग क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके। सो जेंटलमैन, लेडी, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कॉक, hen, horse, mare. So you all learned number A, B, C in your homework. Tomorrow I will ask questions related to A, B, C. That is clear to all of you. So this is enough for today. Tomorrow we will move forward to our worksheet in notebook, and after tomorrow we will complete our book exercise. That is clear to all of you. Okay. So thank you for the today. Thank you and have a nice day.